حضرت خالد نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھر تیلے سالاروں زرار بن الازور، قاقا اور مسنا ابن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے الفادے لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح ربیع الاخر 12 ہجری میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج زراپوش تھی، اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری زراپوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پر شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسرا اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے، اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اس قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں، کسرا کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد کے لیے امید افزا تھیں۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد کو بتایا یہ تخت کسرا کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ اردشیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسرا کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہرہ داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبہے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسرا کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہے میں قتل کر دیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شاہ رگ میں اتر گیا۔ کسرا کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسرا کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی، جاسوس نے جواب دیا، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ خالد نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفہ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم، مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں، قاصد نے کہا۔ امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اب مائیں خالد جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی۔ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد کو دے دیا۔
खालिद पढ़ते जा रहे थे और उनके चेहरे का तासुर बदलता जा रहा था। वहां जो सालार मौजूद थे वो पैगाम सुनने के लिए बेताब हो गए। अमीर अल-मोमिनीन के सवा मुझे कौन रोक सकता था? खालिद ने कहा और सालारों से मुखातिब होकर बोले, अमीर अल-मोमिनीन ने हुक्म भेजा है कि आस बिन गनम दोमल जंदल में लड़ रहा है। अल्लाह इसे फतह अता फरमाए। उधर से फारिग होकर वो हमारे पास आ जाएगा। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा है कि जब आस अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए तो हम आगे बढ़ें। इसके आने तक हम जहां हैं वहीं रुके रहे। खालिद के चेहरे पर जो रौनक और आंखों में फतह व नुसरत की जो चहक हर वक्त रहती थी वो बुझ गई और वो गहरी सोच में खो गए। सालारों के इस इजलास पर सुनाना तारी हो गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि खलीफा अल मुस्लिमीन ने पेश कदमी रोक दी थी, बल्कि वजह ये थी कि खालिद के चेहरे पर ऐसा तासुर कभी कभी आया करता था और ये तासुर एक तूफान का पेश खैमा हुआ करता था। किसी भी सालार को खलीफा के इस हुक्म के मुतालिक कोई बात कहने की जरत ना हुई। चंद मिनट बाद खालिद गहरी सोच से बेदार हुए और कासिद की तरफ देखा। अल्लाह तुझे सफर में सलामती और रहमत अता करे, खालिद ने कहा। आराम करना चाहता है तो कर ले और वापसी का सफर इख्तियार कर। अमीरुल मोमिनीन से मेरा और मेरे साथियों का सलाम कहना, फिर कहना कि जंग के हालात को वही बेहतर समझते हैं जो मैदान जंग में होते हैं। महाज से इतनी दूर बैठकर कोई फैसला करना लड़ने वालों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फिर कहना कि वलीद का बेटा खिलाफत की हुक्म उदूली की जरत नहीं करेगा, लेकिन हालात ने मजबूर किया और इस्लाम को खतरा लाहिक हुआ तो मैं हुक्म की परवाह नहीं करूंगा। मैं खिलाफत मदीना का अमीन और इस्लाम का पासबान हूं। मैं दुश्मन को अपने ऊपर आता देखकर एक शख्स के हुक्म को एक तरफ रख दूंगा। मुझे खुशनूदी अल्लाह की दरकार है, अल्लाह के किसी बंदे की नहीं। मैं मालूम करूंगा कि सालारियास के महाज की सूरत हाल किया है। हो सकता है इसे मदद की जरूरत हो, और यह भी हो सकता है कि वो अपने महाज से जल्दी फारिग ना हो सके और आतिश परस्त इस अरसे में संभल जाए। और खलीफते अल मुस्लिमीन से कहना कि हमने जरतुश्त की आग को सर्द कर दिया है। अल्लाह ने हमें ऐसी फतह अता की है कि जिसने कसरा के महल को शैतान का बसेरा बना दिया है। अर्दशेर के तख्त पर जो कोई बैठता है वो 2 रोज बाद अपने भाइयों के हाथों कत्ल हो जाता है। फारिस की शहंशाही और उसकी शान व शौकत को हमने दजला और फरात में डुबो दिया है। रा जिसे फारिस का हीरा कहते हैं, हमारा फौजी अड्डा है, हमारे लिए दुआ करते रहे। कासिद की रवानगी के बाद खालिद ने एक कमांदार को बुलाकर कहा कि अपने साथ 2 बड़े तेज और तवाना सिपाही लेकर बहुत तेज रफ्तार से दोवमल जंदल जाए और गौर से देखे कि वहां क्या सूरत हाल है और सालार आज कब तक फारिग हो सकेंगे और क्या उनके जल्दी फारिग होने का इम्कान है भी या नहीं। कमांदार उसी वक्त रवाना हो गया। खिलाफ अल मुस्लिमीन के इस हुक्म को जो तुमने सुना है जहन से उतार दो, खालिद ने अपने सालारों से कहा। दिल में खिलाफत मदीना का पूरा एहतराम रखते हुए इन हालात को देखो जो हमने आतिश परस्तों के लिए पैदा कर दिए हैं। अगर हम आज के इंतजार में यहीं बैठे रहे तो कसरा की फौज को संभलने का मौका मिल जाएगा। खुदा की कसम, तुम सब यकीन के साथ कह सकते हो कि कसरा की फौज पर तुमने जो खौफ तारी कर दिया है वो उन्हें किसी मैदान में तुम्हारे मुकाबले में नहीं ठहरने देगा। और मुद्दाए के महल्लात में तख्त नशीनी पर जो कत्लो गारत हो रही है वो हमारे हक में जाती है। कौम के सरदारों में जब तख्त नशीनी वजह बेकार बन जाती है तो फौज ऐसी तलवार की मानिंद हो जाती है जो बड़े ही ढेले और कमजोर हाथों में हो। हाँ इब्न वलीद, सालार आसिम ने कहा, कसरा के जिन सालारों ने फारिस के बच्चे हुए इलाकों में अपनी फौज फैला दी है वो सालार भी तख्त के ख्वाहिशमंद होंगे। वो हम पर फतह हासिल करके फारिस के तख्त पर काबिज होना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फारिस जल्दी तबाह होगा। सालार अदी बिन हातिम ने कहा, सालारों के दिमागों पर जब तख्त व ताज सवार हो जाता है तो वो अपने मुल्क और कौम को बड़ी जल्दी तबाह कर देते हैं। जब तवज्जो तख्त के लफ्ज और अपनी जात पर मरकूज हो जाती है तो निगाहें दुश्मन से हट जाती है। खालिद ने कहा, मैं इन हालात से फायदा उठाऊंगा। अपनी फौज को तैयारी की हालत में रखो। हम
आखिरी फैसला दुवम अल-जंदल की सूरत हाल मालूम हो जाने पर करेंगे। दुवम अल-जंदल की सूरत हाल सालार आज के लिए मखदूश थी। दुवम अल-जंदल इस दौर का मशहूर तिजारती मरकज था। आज के इराक और शाम की शाहराहें यहीं आकर मलती थीं। रसूल अकरम ने तबूक पर चढ़ाई की थी तो इस दौरान खालिद दुवम अल-जंदल तक पहुंचे और यहाँ के कलादार इक्यद बिन मालिक को गिरफ्तार करके रसूल अकरम के हुजूर पेश किया था। इक्यद बिन मालिक ने इस्लाम तो कबूल न किया, रसूल अल्लाह की इताअत कबूल कर ली थी, लेकिन हुजूर की वफात के बाद अर्तदार का फितना उठा तो इस शख्स ने मदीना की वफादारी तर्क कर दी और ईसाइयों और बुत परस्तों को साथ मिलाकर इसका सरदार बन गया था। हजरत अबू बकर ने इक्यद बिन मालिक की सरदारी को खत्म और उसके जेर असर गैर मुस्लिम कबाइल को अपने जेर नगी करने के लिए सालार आज को भेजा था। आज तजर्बाकार सालार थे, लेकिन दुवम अल-जंदल पहुंचे तो देखा कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला जो कलब कहलाता था अपने इलाके के दिफा के लिए तैयार था। ये कबीला जंग और जदल में शोहरत रखता था। आज ने किले को मुहासरे में ले लिया, लेकिन ईसाइयों ने बाहर से मुसलमानों को मुहासरे में ले लिया। अयाज की फौज को आगे भी और अकब में भी लड़ना पड़ा। इस सूरत हाल ने जंग को ऐसा तूल दिया जो खत्म होता नजर नहीं आता था, और ये सूरत हाल आज के लिए रोज बरोज मखदूश होती जा रही थी। खालिद का भेजा हो अकमानदार वापस आया तो उसने खालिद को बताया कि अयाज बिन गनम कैसे आएगा, इसे तो खुद मदद की जरूरत है। कमांदार ने दोमत्ता अल-जंदल में अयाज और दुश्मन की फौजों की पोजीशनें तफसील से बयान की। खुदा की कसम, मैं यहां इंतजार में फारिग नहीं बैठ सकता, खालिद ने परजोश आवाज में कहा। पेशतर उसके कि दुश्मन आगे आ जाए, मैं आगे बढ़ूंगा। मुद्दाएं की शहरपना मुझे पुकार रही है, कोच की तैयारी करो। मशहूर मुअर्रिख तबरी और बिलाजरी ने लिखा है कि खालिद की खुदसरी और सरकशी मशहूर थी। वो चीन से बैठने वाले सालार नहीं थे। इस सूरत में कि दुश्मन 4 शिकस्तें खा चुका था और इसका निजाम दिरहम बरहम हो गए थे और मुद्दाएं के शाही ऐवान में उतरी फैली हुई थी, खालिद फारिग बैठ ही नहीं सकते थे। खालिद का जासूसी निजाम बड़ा तेज और ज़हीन था। इसमें ज्यादातर वो मुसलमान थे जो फारिस में गुलामों जैसी जिंदगी बसर कर रहे थे। वो उन इलाकों से वाकिफ थे और मुख्तलिफ कबीलों की जबानें बोल सकते थे और उनका बहरूप धार सकते थे। वो मुद्दाएं के महल्लात के अंदर की खबरें ले आए थे। उन्होंने खालिद को खबरें दीनी शुरू कर दी कि फारिस की फौज कहां कहां मौजूद है और किसी जगह क्या कैफियत है। उनकी इत्तलाहे के मुताबिक ईरानियों की फौज की ज्यादातर नफरी 2 शहरों में थी। एक था एन अल्तमर और दूसरा अंबार। एन अल्तमर हरा के करीब था और अंबार उससे दुगने फासले पर आगे था। एन अल्तमर दरियाए फरात से दूर हिटकर वाक़े था और अंबार फरात के किनारे पर था। खालिद ने फैसला किया कि पहले अंबार पर हमला किया जाए। ये भी तिजारती शहर था जिसमें गल्ले के बहुत बड़े बड़े जखीरे थे। रबी उल अव्वल 12 एजरी के वस्त में खालिद ने हरा से कोच किया। उनके साथ उनकी आधी फौज यानी 9000 नफरी थी जो हमले के लिए बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन खालिद को अल्लाह पर और अपनी जंगी फहमो फिरासत पर भरोसा था। वो मफतूहा इलाकों को फौज के बगैर नहीं छोड़ सकते थे। ईसाई और दीगर कबीलों ने इताअत तो कबूल कर ली थी, लेकिन मुसलमानों को बड़े तल्ख तजुर्बे हुए थे। इताअत कबूल करने वाले मौका मिलते ही इताअत से मुनकिर और बागी हो जाते थे। राह में खालिद ने काका बिन उमरो और अकरा बिन हाबिस को छोड़ा था। यहां एक गलती की वजाहत जरूरी है। 2-4 तारीख दानों ने लिखा है कि खालिद हरा में सालार आज के इंतजार में 1 साल रुके रहे। ये गलत है। इस दौर की तहरीरों से साफ पता चलता है कि खालिद ने हरा में पूरा 1 महीना भी इंतजार नहीं किया। ना उन्होंने अमीर अल-मोमिनीन को ये पैगाम भेजा कि वो उनके हुक्म के खिलाफ सालार आज का इंतजार किए बगैर मुद्दाएं की तरफ पेश कदमी कर रहे हैं। खालिद अपनी 9000 सिपा के साथ फरात के किनारे किनारे बड़ी तेजी से बढ़ते गए। उनके जासूस मुख्तलिफ बारूपों में दरिया के दूसरे किनारे पर आगे आगे जा रहे थे। अंबार से थोड़ी दूर रह गए तो खालिद ने फरात उबूर किया और उस किनारे पर चले गए जिस पर अंबार वाक़े था।
वहां उन्होंने मुख्तसर सा क़याम किया और 2 खत तहरीर कराए, एक कसरा के नाम और 2 सरा मुद्दाएं के हुक्काम और उमरा वगैरह के नाम। कसरा के नाम खालिद ने लिखवाया बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। खालिद बिन वलीद की जानिब से शाह फारिस के नाम। मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का जिसने तुम्हारी बादशाही को तहवबाला कर डाला है और तुम्हारी अयारियों को कामयाबी से महरूम रखा है और तुम आपस में ही दस्तो गिरेबान हो रहे हो। अल्लाह अगर तुम्हें मजीद मोहलत देता तो भी घाटे में तुम ही रहते। अब तुम्हारी नजात का एक ही रास्ता है, मदीना की इताअत कबूल कर लो। अगर ये मंजूर है तो मैं शराइत तय करने के लिए दोस्तों की तरह आऊंगा, फिर हम तुम्हारे इलाके से आगे निकल जाएंगे। अगर पसो पेश करोगे तो तुम्हें ऐसी कौम के आगे हथियार डालने पड़ेंगे जिसे मौत इतनी अजीज है जितना तुम जिंदगी को अजीज रखते हो। खालिद ने मुद्दाएं के हुक्काम और उमरा के नाम लिखवाया बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। खालिद बिन वलीद की जानिब से फारिस के उमरा के नाम। तुम्हारे लिए बेहतर सूरत यही है कि इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हारी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होंगे। इस्लाम कबूल ना करो तो जिज़िया अदा करो, वरना सोच लो कि तुम्हारा सामना एक ऐसी कौम से है जो मौत की इतनी ही शदाई है जितने फरेफ्ता तुम शराब पर हो। खालिद ने शाह फारिस के नाम हरा के रहने वाले एक आदमी के हाथ भेजा और उमरा वगैरह के नाम खत ले जाने वाला अंबार का रहने वाला एक आदमी था। किसी भी मुअर्रिख ने इन दोनों आदमियों के नाम नहीं लिखे। अंबार जिस इलाके में था वो साबात कहलाता था। साबात आज कल के जिलों की तरह था और अनहार इस जिले का सबसे बड़ा शहर था। साबात का हाकिम शेरजाद था जो इस वक्त अंबार में मुकीम था। वो दानिशमंद और आलम था। इसमें अस्करी सलाहियत जरा कम थी, लेकिन अंबार में फौज ज्यादा थी कि उसे अस्करी सूझबूझ की जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी फौज के अलावा इसे साथ ईसाइयों की बेशुमार नफरी थी। इतनी ज्यादा फौज के अलावा अंबार की शहरपना बड़ी मजबूत थी और दिफा का ये इंतजाम भी था कि शहर के अर्द गिर्द गहरी खंदक थी जिसमें पानी था। इस तरह अंबार को नाकाबिल तस्खीर शहर बना दिया गया था। खालिद के लिए तो ये इसलिए भी नाकाबिल तस्खीर था कि उनकी फौज की कल नफरी 9000 थी। अंबार के जासूसों ने मुसलमानों की फौज को शहर की तरफ आते देखा तो उन्होंने शेरजाद को जा बताया। फिर सारे शहर में खबर फैल गई कि मदीना की फौज आ रही है। शेरजाद दीवार पर जा चढ़ा। इसे जासूसों ने मदीना की फौज की नफरी 10,000 बताई थी। नहीं, ये धोखा है। दीवार पर खड़े शेरजाद ने मुसलमानों की फौज को देखकर कहा, जिन्होंने हमारी इतनी जबरदस्त फौज को एक के बाद दीगरे 4 लड़ाइयों में शिकस्त दी है, वो इतने अहमक नहीं हो सकते कि इतने बड़े कलेबंद शहर पर हमला करने के लिए इतनी कलील फौज लाए। ये उनकी फौज का हर अव्वल होगा। अगर हर अव्वल नहीं तो इतनी ही फौज पीछे आ रही होगी या किसी और समत से आ रही होगी। शहर के लोगों में अफरा तुफरी मच गई थी। उन्होंने मुसलमानों के बड़े दहशतनाक किस्से सुने थे। उन्होंने अपनी शिकस्त खुर्दा फौज के जख्मियों को और मान जंग से भाग कर आने वालों को देखा था। उनका खौफ और हरास भी देखा था। पसपाई में अपने आप को हक बजानिब जाहिर करने के लिए उन्होंने लोगों को जंग के ऐसे वाकयात सुनाए थे जैसे मुसलमान जिन भूत हों। अब वो मुसलमान उनके इतने बड़े शहर को मुहासरे में लेने आए थे। उन्होंने अपने जेवरात और रेतुम्हें और अपनी जवान लड़कियां छुपानी शुरू कर दी। शहर में खौफ वहरिस और भगदड़ ज्यादा देर ना रही, क्योंकि दीवार के ऊपर से बुलंद आवाज में सुनाई देने लगी थी कि मुसलमानों की तादाद इतनी थोड़ी है कि वो सारी उम्र शहर की दीवार तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दीवार के ऊपर कहकहे बुलंद होने लगे, मुसलमानों, आतिश परस्त मुसलमानों पर आवाजें किस रहे थे, तुम्हें मौत यहां तक ले आई है। जिंदा रहना है तो मदीना को लूट जाओ। शहर पना पर तीर अंदाजों का हुजूम खड़ा था। मुसलमानों ने शहर को मुहासरे में ले लिया था और खंदक ने उन्हें रोक लिया। तबरी और आकुवत लिखते हैं कि खंदक दीवार के इतना करीब थी कि उसके करीब आने वाले ऊपर से छोड़े हुए तीरों की जद में आ जाते थे। ऐसा ना होता तो भी खंदक को फलांगना मुमकिन न था।
ये बहुत छोड़ी थी। तीरंदाज मुसलमानों पर हंस रहे थे और वो हजारों की तादाद में दीवार पर यूं खड़े थे जैसे मुसलमानों का तमाशा देख रहे हों। खुदा की कसम, खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग किया है और किस तरह लड़ी जाती है। मुअर्रिख लिखते हैं कि अंबार हर लिहाज से नाकाबिल तस्खीर था, लेकिन खालिद के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासुर नहीं था। वो परसुकून थे। रात को उन्होंने अपने खेमे में अपने सालारों को यकीन दिलाया कि फतह उन्हीं की होगी, लेकिन कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी। उन्हें सिर्फ ये बात फतह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी कलों की हुआ करती है। सुबह तुलू होते ही खालिद घोड़े पर सवार हुए और शहर के अर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगे। वो दीवार और खंदक का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि उन्हें 1000 ऐसे तीर अंदाजों की जरूरत है जिन्हें अपने निशाने पर पूरा पूरा एतिमाद हो और जिनके बाजू में इतनी ताकत हो कि कमानों को कैनची तो कमा नहीं दोहरी हो जाए और आम तीर अंदाजों की निस्बत उनके तीर बहुत दूर जाए। बहुत जल्दी हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीर अंदाज आ गए। सब के सब जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह मिलते हुए जाओ कि कमाने तुम्हारे हाथों में लटक रही हों। ऐसा लगे कि तुम चलते चलते खंदक के करीब चले गए हो। जो ही खंदक के करीब जाओ, निहायत तेजी से तरकशों से तीर निकालो, कमानों में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मन के तीर अंदाजों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ, पेशतर उसके कि वो जान सकें कि ये क्या हो गया है। एक एक इसके बाद फिर एक तीर चलाओ। मुअर्रिख तबरी के मुताबिक खालिद ने हुक्म दिया था, सिर्फ आंखें, सिर्फ आंखें। 1000 तीर अंदाज खालिद के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे और बेपरवाही से खड़े थे। उन्हें मुसलमानों का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था कि वो खंदक को फलांगने की कोशिश करेंगे। खंदक के करीब पहुंचकर उन 1000 तीर अंदाजों ने ऊपर देखा, उधर उधर देखा, खंदक में देखा और अहमकों की सी हरकतें की। आतिश परस्तों के तीर अंदाजों ने उन पर तीर चलाने की जरूरत महसूस न की, हालांकि मुसलमान तीर अंदाज उनकी जद में थे। अचानक मुसलमान तीर अंदाजों ने तरकशों में से एक तीर निकाला। पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रख के दुश्मन की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों में से बेशतर आतिश परस्तों के तीर अंदाजों की एक आंख में उतर गए। मान बाद मुसलमान तीर अंदाजों ने 1000 तीर छोड़े, फिर 1000। और ये कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों का कोई भी तीर खता नहीं गया। तारीखों में लिखा है कि ज्यादा तीर दुश्मन की आंखों में लगे और शहर में यह खबर तेज हुआ की तरह फैल गई, हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें जाए हो गई हैं। अब उन सैकड़ों सिपाहियों को शहर पना से उतारा गया तो शहर के लोगों ने हर एक की एक आंख में तीर उतरा हुआ और उन जख्मियों को कर्बनाक आवाज जारी करते देखा। एक अंग्रेज मुबस्सिर सर वॉल्टर ने मुतादिद मुअर्रिखों के हवाले से लिखा है कि मुसलमानों की तरफ से 3000 तीर इतनी तेजी से चले कि आतिश परस्त अपने आप को बचा ही ना सके और तीर जिनकी आंखों में ना लगे उनके चेहरों में उतर गए। चूंकि फारिस के ये सिपाही और उनकी मदद को आए हुए ईसाई शहर पना पर घने हुजूम की तरह खड़े थे, इसलिए कोई तीर जाए ना गया होगा। तीर ने एक आदमी को जख्मी किया। तबरी की तहरीर